Good evening, everyone. Let's start our new next webinar on how to improve your marks in the mains examination. So today I will discussing about the some more issues regarding your mains preparation and the strategies which you should follow within next 20 days, 25 days. Before that, I want to tell you that already we have discussed with the, everything about the essays and those things which we have discussed for GS 1, 2, 3, especially 4. So whatever things are left, we'll talk about it in the next class, and we'll talk about the compulsory papers that with least amount of effort how you can do better in the compulsory paper without almost without studying anything. However, it is very easy to qualify these days because I think the passing marks is same, only 25%, right? So, okay, okay, so we'll start now. See, just like after talking to you, I just came to know about that someone is saying that their marks are going to decrease every year. Like in the very first year, they got very good marks and missed the interview call uh, by very close way, like for example 8 to 9 marks, and simply because as the time you study more, you know the more information, but your marks are not improving. It is basically decreasing, that you are missing the interview marks, interview cutoff with larger range. So what is the reason? See, so I want to tell you that the main reason is the simplicity. Simplicity in your answer is must. Why? See, try to understand with the point of examiner. See, those who are professors in the colleges, they are called for the interview for the to check the mains copy. So first of all, try to understand that are professors of the age group 55 to 60 or more than that will actually check your copy of more informatively or more with more knowledge for GS especially, because optional obviously they will check, and GS also they will check. But are they checking in that way? See, first of all, the professors are called for this to check the copy, but mostly they will send their juniors, maybe the assistant professors and or associate professors or below that, because they want that these persons are very much active in their performance because they are younger, and as the professors are getting older, they won't come to Delhi and to check the copy and reside there. It's very difficult for them at this old age. So better, so basically those people who are at the younger age in the educational institutions, they are checking your copy and try to understand the fact that these professors or these associate professors or assistant professor, they are basically the teachers who are teaching in a college or the university, and they are teaching the particular subject means like maybe they are teaching history, geography, polity, or whatever, or maybe they are teaching the some other subjects. Essays, for example, no college is having the some subject like essays, and no college have some subject like ethics. So these are generally checked by the journalist, maybe retired IAS officers or some other way they have UPSC have formed to check this copy by some journalist. Okay, and these college professors, they are not having that much knowledge as per the student have, because see, you are studying every subject, you're studying each and every day newspapers, you are making notes, you have the all the information at your uh, disposal about the UPSC, and about any topic, right? As compared to these teachers or the assistant professors who are teaching in various colleges. Okay, so so basically, it means what? It means that you should write the answer in a most simpler way, because see, they will check your copy, they might not know the best answer, but after checking 5 or 10 copies, they will come to know each and everything, and they will not be knowing it now, but after some time they will be knowing what is the topic,
what are the merits of it, what are the demerits of it, why. After checking few copies, so after checking few copies, they will come to know the that what is the right way to answer this question, what you have to write, what you don't have to write. So therefore it means what, the simplicity matters. They might not know the whole topic, but after checking 5 to 10 copies they'll come to know, because you people will be, giving the answers. And sometimes in the past some RTI has been given to the UPSC to know that whether the model answers are given to these teachers. UPSC has denied that there is no model answer given to the teachers. I don't know that whether it is whether they have started it now or not, but it is just recently, I think 3 4 years only back. And even they are giving or not giving, it doesn't matter. They will check the copy and they will just, have some idea a little bit, and you will be, giving them the information regarding these topics. Why? Because you see, there are so many topics to know and understand. While you are writing an answer, he is not going to check everything, cross check. Like for example, some case study you are writing, which is given in some Yojana or Kurukshetra. So tell me, is the fellow or the teacher is aware about that Yojana or some case study given in Yojana or Kurukshetra? No, no, he is not is reading those books now. He is teaching at his college. So similar things that they know that much, as much you know. They are expert on those subjects. You are uh, you are knowing something of everything. They are knowing everything, almost everything of a small part of that subject. Some are doing research, some are research scholars doing PhD, so they might be knowing, doing research on a particular topic. So try to understand that your simplicity will matter there. If you write in a complicated way in answer, and that is very difficult to for the examiner to understand, definitely you are going to lose marks. That is one of the main reason. You will find many candidates who are giving mains and they are very knowledgeable. Slowly and steadily, if they are not writing in a very simpler way, their marks are decreasing. I have during my preparation also I have seen the candidates that, for example, when I was living with two three of two three of my friends, one friend who is very good in public administration. He has like every information he knows. Even he had read journals, but as the attempts are increasing, his marks in public ed is decreasing. So another fellow who took some guidance within the mains. Previously, it was like that you can give the optional during the mains period, not before prelims. They will take your optional subject information, everything. So he taught him for 2 months, 1.5 months, and he learned the public administration during that time only. Little bit of his own effort. So hardly he knows very much complicated things. He knows the basic things, and he scored more than that fellow in the public administration mains optional subject. And finally, he qualified into IPS, and he is currently additional commissioner of police in Delhi, right? North region. So he's my very good friend, and he always told me because of the simplicity, I got good marks in public education. That fellow is knowing much more than me, but he's writing very complicated and tough answer. The examiner will not able to understand that what is writing. That much knowledge he has, but marks he will not get because he is not very simplistic in approach. So simplicity is the key. Okay, so I hope now all of you will try to make your answers simpler and very presentable to the examiner to understand him. मतलब उसको पढ़ते हुए सब समझ आ जाए. As soon as he read, he gets to know the whole topic as per the, and you you try to understand that there are several questions in that same question. Some parts are there. So you have to answer each and every part, yeah, while changing the paragraphs of each part, and try to use the words from this question into the answer. Okay, so that the examiner will come to know that okay, you are addressing exactly what is asked. So जो parts दिया गया होगा ना, whatever parts are there, try to you to address each and every part, right, and try to use the words from the question in the answer, right, so that the examiner will know that you are specific on that topic. Okay, similar things you have to do in the essay also. You try to use the words in the essay in the answer, in the your essay part, at different places as per the flow, है ना, जैसे टॉपिक है उस तरह से पढ़ते हुए
use those words, underline भी करना है, so that examiner will know that you are on the right topic, on that, on the same topic. Okay. Now you have almost considered that you have 20 to 25 days, but you consider it 20 days only. Why? Because some of you are studying optional also, and 2 3 days here and there will get wasted also. And a good test series hoga, maybe some other things will go here and there. Okay, so sometimes it will be wasted. So 20 days you assume to be there with you. So try to finish your optional before optional should be over before this month, or at the end of this month, end of August. ठीक है, September should be fully devoted to the GS. Okay, this is one most important thing. Secondly, whatever you have read in optional, see, कोई भी complete नहीं हो सकता, nothing will be completed. मतलब you, if you think that let me do the optional like 100%, 100% preparation is not possible in neither in prelims nor mains nor in an interview, but you will manage to qualify the examination based on overall performance. ठीक है, so therefore 100% preparation is not possible, and don't strive for 100% perfection also. Just try to complete the optional, जो पढ़ना important things, do it, complete it, finish it and put it aside, and you'll read it after the GS paper. ठीक है, so make this, in this, in the process that you have 4 5 days left for this end of this month to complete the optional paper. And most and most importantly, you have to give the time, like every day I told you to write 3 questions every day, right? For 30 minutes. So I told you to do that 3 questions for 30 minutes. That means what? That means you have to do it at either at 9 a.m. ठीक है, so 9 to 12 exam is there, and then 2 p.m. 2 to 4. Okay, this you have to do everyone. Okay. Okay, fine. ठीक है. Now coming to this point that uh, ये आप लोग कौन कौन कर रहे हैं, that question 3 questions every day, how many of you doing actually? Mahima, are you doing? No, sir, I am not able to do, but I am trying to write uh, the mock test every alternate day or every day. Okay, ठीक है, that's fine, but this is basically self practice, right? And this will give you the lots of insight as well as the practice, है ना? Okay, sir. ओके, मतलब ये बहुत हेल्प करेगा, मतलब जो भी लड़के सेलेक्ट हुए हैं, चाहे राहुल हो, चाहे पहले भी जो लड़की प्रियंका हुई हुई है, या फिर तो कितने सारे हुए, नाम भी भूल जाता हूँ मैं, है ना? साउथ में भी कई लोग हुए हैं, सब के सब एवरीबडी, मतलब विद गुड रैंक, दोज वांट टू क्वालिफाई, 3 क्वेश्चंस करने हैं, हाफ एन आवर, एंड सी, इफ यू थिंक दैट ये छूट गया, तो छूट तो बहुत कुछ जाएगा, देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी लेफ्ट, है ना? You have to revise each and everything, but at the same time, this 3 questions will give you great, push actually in the actual examination. 15 days करके देखो, you will love this thing, and then you will continue it till the last day of your before the examination, last day तक. ठीक है, ये आप Yes, करोगे, करो, yes, sir. बहुत फायदा है उसका. ओके, सो ट्राई टू डू दिस 3 क्वेश्चंस, एंड अगर इसको करना है तो 9 a.m. एंड 2 p.m. दोनों टाइम भी कर सकते हो, एक टाइम भी कर सकते हो, राइट? अब जिसको ज़्यादा नहीं मजा आ रहा है तो एक टाइम कर ले, एटलीस्ट कर ले, राइट? दोनों टाइम करने का है तो वन टाइम यू कैन डू द ऑप्शनल, बट ऑप्शनल टाइम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 3 4 5 days हुआ. सो जीएस का ही करना है फिर अब, आफ्टर नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले मंथ से. अभी चाहो तो यू कैन डू, एक शिफ्ट में ऑप्शनल कर लो और एक शिफ्ट में जीएस कर लो. मेनली द फर्स्ट शिफ्ट में ऑप्शनल कर लो, सेकंड में जीएस कर लो, एंड आफ्टर योर दिस एंड ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ यू स्टार्ट ओनली फॉर जीएस. ओके, सो नाउ सम ऑफ यू माइट बी, कुछ लग रहा है किसी को कि अभी भी 20 days कैसे होगा, डिफिकल्टी लग रही होगी, बट सी, आई टेल यू दैट ऑलरेडी यू हैव स्पेंड many years in the preparation, and how many years you have spent will not matter much.
ऑलरेडी 3-4 ईयर्स स्पेंड किया है, कोई ने 5 ईयर्स किया है, somebody might have spent some 8 years, है ना, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द मोटिवेशन यू हैव. How many years you have spent will not matter much. What matter is this last 20 days. Why? Already whatever you have learned is in your long term memory. But how this memory will help you to retrieve the information. How to retrieve the information. That is the main thing. That means, are you able to retrieve the information of a long term memory of 1 year, 2 year, 3 years? It is difficult. But in these 20 years, your revision of all the materials which you think you have made for the examination, or you either you have made or you are getting it from the coaching, you, that material you are using, you are going for revision. This revision will give the complete command over your previous learning which you have done many years back or 2 years 1 years back. So क्या होगा, in these 20 days all the efforts of your years of the effort will be accumulated in your mind, and you will be able to give the, or you'll be able to write the good answer, because आपको सब याद आ जाएगा, everything you will be able to recall. ऐसे recall नहीं होगा, but once you revise and understand the keywords, क्योंकि revision भी क्या है, active revision, already we have discussed it. ठीक है, एक्टिव रिवीजन रहेगा. सो वंस यू रिवाइज इट एक्टिवली, देन इट विल बी इन योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इजीली. ठीक है, सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वे यू आर गोइंग टू डू, देन यू आर गोइंग टू डू इट वेल. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो हाफ डे यू कैन डिवोट फॉर रिवीजन, एंड रेस्ट हाफ यू कैन, मे बी यू कैन स्टडी समथिंग न्यू, बट मैक्सिमम 2 more weeks. देखिए लास्ट वीक में कुछ नया पढ़ने तो होने वाला नहीं है. लास्ट वीक में भी 20th एग्जाम इज देयर, यू कैन कट ऑफ रीडिंग, यू कैन ट्राई रीडिंग द न्यू मटेरियल मे बी बाय द 10th ऑफ दिस नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, बिकॉज न्यू मटेरियल में क्या है, करंट अफेयर्स है, दैट इज यू हैव टू डू इट. ठीक है, विवेक सिंह का मटेरियल आ गया, विवेक सिंह का इकोनॉमिक्स का आ गया होगा. ठीक है, दैट इफ इट इज देयर इन द मार्केट यू शुड रीड इट, मस्ट रीड, because it is very good material, and all the economics current affairs question will be will be written in a very good way in this. ठीक है, विवेक सिंह economics you can read it. Okay, it is very good and important one. You will find 1 or 2 questions directly from that material. 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स में, राइट. तो on current affairs try to revise it at least 3 times. एक आपका क्या बोलते फर्स्ट रीडिंग होगा, वो वो रीडिंग है, रिवीजन नहीं है. देन फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन. थर्ड रिवीजन एग्जाम के पहले, जस्ट मतलब लास्ट वीक में. एकदम जैसे कल GS2 है, एकदम से नहीं हो पाएगा पूरा, बिकॉज GS1 2 एक साथ होता है, फिर 2 3 होगा, तो फिर क्या, फिर 3 4 होगा, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा. सो द लास्ट वीक दैट विल बी द फाइनल रिवीजन. Okay, so you can read new material by the 10th of next month, and then new material means the current affairs, because GS1 में कुछ तो new है नहीं, everything you have read, है ना. So just revision is there. Okay, and still if मतलब एक एक आपको फीलिंग रखनी है क्या, लगातार रिवीजन की, एंड रीडिंग द मटेरियल, वट एवर इज कमिंग द मार्केट एज पर योर ओन प्लानिंग. जो इफ यू प्लान फॉर रीडिंग सम मटेरियल ऑफ सम कोचिंग, पर्टिकुलर कोचिंग विजन है ना, या कोई भी मटेरियल है, वट एवर यू प्लान, यू रीड इट अकॉर्डिंगली एंड रिवाइज इट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस कि नेवर गिव अप. नेवर गिव अप व्हाट, मतलब अभी भी पूरा, दोज हु हैव नॉट स्टडीड, या जोज हु आर लैकिंग इन मैनी मैनी सब्जेक्ट्स, या लैक थोड़ा है, रिवीजन कमी है, इन 20 days इफ यू डू इट थॉरली, रिवीजन हो जाएगा पूरा, बहुत अच्छे से हो जाएगा. बट इफ यू आर थिंकिंग डेट अब नहीं होगा, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डेट नेक्स्ट ईयर इज विल नेवर कम, बिकॉज फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दिस डिफिकल्ट, ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. प्रीलिम्स होता है तो फिर वही मेंस में, फिर सेम सिचुएशन विल बी देयर, एंड यू विल आस्क फॉर 1 more year. So I'm telling you that is not the right way to approach the mains.
आपने मेंस में आपको मिला है, यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, एंड नाउ द जर्नी इज ऑफ मेंस इज हार्डली 20 days, 20 to 25 days. वंस यू हैव डन दिस इन ए वेरी गुड वे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, एग्जाम दे दिया, ऑल द hurdles in your life is over forever. All the hurdles in your life is for over forever. Not only in your life, your family, your friends, your relatives, whosoever you like, for them also most of the hurdles are over. Your hurdle is almost zero. Everyone's close associate of yours is also, their hurdles in the life is completely zero. ठीक है, सो जस्ट वन एग्जाम एंड यू विल बी एंडिंग ऑल योर पर्सनल टू प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स इन वन गो. ठीक है, एंड यू विल एंटर इन न्यू, है ना, वे ऑफ लाइफ. Okay, so that is to get that way of life, or that officer's life, जो आपको लाइफ के और इंडिया के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सोल्यूशन है, जो भी अपने इश्यूज है लाइफ में, वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं, मोस्टली रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टेटस, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस विच यू मेक विद एनीवन, है ना, जिसको आप कॉल करते हैं, ही विल लिसन टू यू, है ना, वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. तो वो चीज़ें सबका कंप्लीट सॉल्यूशन वंस यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एंड यू हैव जस्ट 20 to 25 days विदाउट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल डे. एक दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जीवन स्मूथ हो जाएगा. तो इसलिए जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, एवरीथिंग कैन वेट, नॉट यूपीएससी. तो यूपीएससी तो 20 दिन, तो 20-25 दिन में आपको पार्टी करना है, कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबको आप हटा दीजिए. मतलब एनीथिंग विच इज इन बिटवीन योर क्वालिफाइंग फॉर यूपीएससी, है ना, आपके और आपके गोल के बीच में है, एनीवन, वेदर इट इज क्लोज फ्रेंड और फ्रेंड्स, मतलब फैमिली, या कोई भी है डिस्टर्बमेंट, मेनली डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, उनको 1 महीने के लिए छुट्टी दे दीजिए. ठीक है, यू जस्ट आज दिन कि 1 महीने तक मुझे कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कहीं मिलना भी नहीं, टाइम भी नहीं है. उसके बाद यू विल थिंक दैट कि 1 महीना होने के बाद अगर एग्जाम आपके अच्छे चले गए, फाइनल सिलेक्शन हो गया, फिर तो आपको टाइम ही टाइम है, पूरा टाइम एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, सब चीज़ हुआ. मतलब जस्ट यू टू पोस्टपोन एवरीथिंग विच इज गोइंग टू बी हर्डल इन योर गोल. ठीक है, तो ये जरूर करना है, सबको सबको साथ लेके नहीं चलना है. तो 20 days, मतलब 20 days में कुछ नहीं, ओनली यू एंड स्टडी. आपको क्या करना है दिन भर में, सिर्फ सोना 6 घंटा है, पक्का सोना है, सोना में कोई कमी नहीं, 4 आवर्स 5 आवर्स नहीं सोना है, फुल स्लीप 6 hours to 7 hours. क्योंकि वॉट एवर यू आर स्टडिंग ना, आफ्टर यू स्लीप देयर, योर कंसोलिडेशन ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, उसका अरेंजमेंट कंसोलिडेशन होता रहता है, तो वो रिकॉल के लायक बनती है नेक्स्ट डे या उसके बाद. अगर आप नहीं सोएंगे तो वो कंसोलिडेशन नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा माइंड में अलग अलग जगह, तो रिकॉल के लायक नहीं बनेगा, एग्जाम में रिकॉल ही नहीं आ पाएगा. सो डेट इज वाई स्लीपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्लीप स्लीप 6 to 7 hours. ठीक है, उसके बाद बाकी टाइम स्टडी. और कुछ है क्या, 20-25 days या 1 month भी है, टोटल एग्जामिनेशन मान लिया जाए, तो 1 month, इफ यू डू, ऑलरेडी यू हैव गिवन सो मेनी ईयर्स और सो मेनी सेक्रीफाइसेस यू हैव डन, ऑलरेडी यू हैव डन, बहुत सेक्रीफाइस आप कर चुके हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप भी आप सेक्रीफाइस कर चुके हैं, हो भी चुके हैं, अपने आप भी हो चुके हैं. आप टाइम नहीं था तो वो खुद ही रिलेशन सेक्रीफाइस हो गया अपने आप ही. और जो भी हुआ है, आपके पेरेंट्स भी आपका वेट कर रहे हैं आपके सिलेक्शन का, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर योर क्या सिलेक्शन, स्पेशली योर फैमिलीज, है ना, कुछ क्लोज फ्रेंड, रेस्ट ऑल आर वेटिंग फॉर योर फेलियर. ठीक है, आपके रिलेटिव में भी जो आपको नहीं पसंद करते हैं, या सामने से पसंद करने के बाद में, तो किसी को अच्छा थोड़ी लगता कि लड़का, उसका लड़का आईएएस बन गया, अच्छा लगता है, चाचा जी का वो अच्छा लगेगा कि अरे उनका बेटा आईएएस बन गया, मेरा बेटा अभी तक नौकरी नहीं मिली. ये फलाने ताऊ जी को या फलानी मौसी या कुछ अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगता अच्छा भाई फलाना लड़का कलेक्टर बन गया. खुद ही सोचो, राइट, तुम ही सोचो, तुम्हारा दोस्त कलेक्टर बन जाए, तुम्हारा नहीं हो तो क्या होगा, दुख होगा ना, है ना, होगा कि नहीं होगा, कि अच्छा लगेगा कि चलो वो बन गया, मैं नहीं बना, कोई बात नहीं. ठीक है ना. तो इससे क्या सीखना है, तो खुद बनना है, कोई बने ना बने, खुद बनना है. सो इसके लिए ऑल एफर्ट सेक्रीफाइसेस जो किए हैं आपने ऑलरेडी इन दीज ईयर्स, नाउ दे आर देयर टू शो यू द रिजल्ट. अब आपको अपनी मेहनत का वो मिलने वाला है, जो आपको रिवार्ड मिलने वाला है. क्यों, कब मिलेगा, when one more condition is there, one month more study, just one more month, एकदम
टाइटली स्टडी और पूरा रिवीजन सब चीज़। बस आपको उसके बाद भगवान आपको वो रिवार्ड देने वाला है फाइनल सिलेक्शन का। लेकिन अगर ये 20 दिन और 25 दिन और एक महीना यू आर गोइंग एज यूजल, बिजनेस एज यूजल चल रहा है कि ठीक है हो जाएगा, नहीं हुआ कोई अगले साल फिर दे देंगे, है ना, फलाना ये वो, बहुत सारे मन को बहुत सारे बहकावे हैं मन को बुलाने में। डोंट लिसन टू डैट, जस्ट थिंक डैट दिस 30 days कैन चेंज योर लाइफ, है ना, नहीं तो फिर आना पड़ेगा राजेंद्र नगर और फिर क्या क्या तो होता रहता है वहाँ नया नया कांड। ठीक है, ऑलरेडी इस बार देख ही चुके हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ट्राई टू मतलब मेक श्योर माइंड को आज आज से ही कि 30 days मीन्स मी एंड माई स्टडीज, और वो 6-7 घंटे की स्लीप, बस इसके साथ अलावा कुछ नहीं। किसी से बात करना है फैमिली फ्रेंड, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बहुत, उसके फुल टाइम पढ़ाई, एवरी थिंग कैन वेट नॉट यूपीएससी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी पेपर इज इम्पॉर्टेंट। GS 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, है ना, ऑप्शनल भी, ऐसे भी। इफ यू थिंक डैट कि नो मेरा माई दिस पेपर इज वीक, है ना, लेट इट गो, 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसमें लिख लेंगे और इसमें कर लेंगे, दिस माइंड सेट इज नॉट गुड, राइट, एज ऑफ नाउ। अभी तो टाइम है, 1 month, ऑलमोस्ट 20 days प्लस। आफ्टर दिस विल थिंक लास्ट 4-5 days, लास्ट वीक की क्या छूट गया है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो डेट कहाँ से इजी क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से टफ आ जाएगा। You never know that something you are studying on a superficial level, you'll get some easy question. Something you are studying in a very deeper level, you will get a depth, some question of high depth. So you may not know the right answer. So in that way, every paper is important, and whatever you can read and learn or revise, do it as per the previous year question paper and your preparation strategy. Okay, so ये बहुत important है। For and one more thing that for example GS 1 is the, जो भी ऐसे ऐसे हो जाएगा ये कर लेंगे, ठीक है। बट GS 1 जो पेपर है, यहाँ से आप ऐसे तो सभी कर लेता है कुछ ना कुछ, GS 1 से अगर स्टार्ट है पेपर आपका, है ना, कंसिडरिंग दिस, तो और GS 2 भी सेम डे है, फिर उसके बाद GS 3 एंड GS 4 है। सो अंडरस्टैंड दैट कि ये स्टार्टिंग का पेपर GS 1 खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो दिस विल इम्पैक्ट द GS 2, फिर ये भी खराब हो सकता है ना। और GS 2 खराब हो तो GS 3 ऑटोमेटिकली आपका रात में आएंगे, आप शाम का आपको मन नहीं होगा पढ़ने का, आप सो जाएंगे, GS 3 खराब हो गया। ये खराब हुआ तो GS 4 आप खुद ही अपने से खराब कर लेंगे, है कि नहीं। इट्स ए कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप अगर ये सोचो कि आपका GS 1 अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, तो GS 2 का जो जो जाएगा एफर्ट, वो GS 2 में यू विल ट्राई टू स्कोर, मैक्सिमाइज योर स्कोर, GS 2 में भी करोगे, दोनों भी अच्छा हो जाएगा। शाम को अगर GS 3 के लिए आप देखोगे, अच्छे से उसको भी कर डालोगे, एंड फिर GS 4 कॉन्सिक्वेंटली ईजी होता ही है, हो ही जाएगा अच्छा, पेपर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दिस वे देन यू विल मूव टू द ऑप्शनल, और फिर डेट इज आई टोल्ड ना कि अभी नहीं पढ़ना ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल फिर आपका बाद में है। तो ये GS जब अच्छा हो जाएगा, ऑप्शनल यू हैव 1 week टाइम, यू डू इट वेरी वेल, सब रिवाइज करके सब करके लिख लोगे। ठीक है, इट्स बेसिकली द माइंड सेट। इफ यू आर कंसिडरिंग इट नॉट सो इम्पोर्टेंट पेपर, है ना, कि चलो ठीक है हो जाएगा कैसे भी, तो फिर वो खराब भी हो सकता है। तो हाँ, तो वैसा नहीं करना है। ओके, तो स्टार्टिंग पेपर परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्टिंग पेपर परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू शुड डू। तो GS 1 खराब ही होना चाहिए, फिर GS 2, तो बिकॉज इट विल सब्सिक्वेंटली इम्पैक्ट द अदर पेपर्स। ठीक है, दिस वन ऑल्सो, जो देखिए अभी अभी टुडे आई डोंट वांट टू टेल यू द स्ट्रेटजी ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो अंदर बैठ के आप करेंगे, वो तो ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। तो बट जस्ट 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और 2 days बिफोर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पर आज मेरा जनरल ये है कि यू हैव डेट दिस 20 days, 25 days, वट एवर डेज दीज आर देयर, these are very crucial time for you to revise everything, and once you are done this, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द एग्जामिनेशन।
और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इंटरवल जो होता है, ब्रेक होता है बीच में, देयर यू नी नॉट डिस्कस जो क्वेश्चंस होता है जीएस 1 और 2 के बीच में जो ब्रेक हो, यू नी नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं करना डिस्कस। वाई? सी दिस इज मेंस, प्रीलिम्स तो है नहीं कि मालूम टिक मारा है तो ये सही है तो वो सही है, वो गलत है वो गलत है। लेकिन इट्स मेंस, एवरीबडी इज राइटिंग एंड व्हाट दे हैव रिटन दे माइट नॉट रिमेंबर आल्सो एग्जैक्टली। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, फिर उसमें डिस्कस कर लिया, कुछ अपना छूट गया, पॉइंट लिखना उसने लिखा है, आपको खराब लगेगा। दिस विल आल्सो डिक्रीज। समटाइम्स यू नो मैंने तो कुछ और लिख दिया हो तो लिखना कुछ और था, देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग दैट थिंकिंग कि अरे मेरा पेपर बेकार हो गया, राइट? So discussion is of no use with your friends in the interval time, and no need also. Take rest, आराम करना है, टेक रेस्ट, एंड नेक्स्ट के लिए परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है, उसके लिए खाना वाना जो भी लेना है आपको लेना है, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है आगे का। नो 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 नीड ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको, नाउ द क्लाइमेट इज ऑल्सो लिटिल बिट डिफरेंट, चेंजिंग, रेनी है, सनशाइन, उसका सनशाइन होता है, फिर रेन हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है, वायरल इज ऑल्सो देयर। सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, जैसे बाहर का खाना नहीं खाना है, कुछ और बाहर घूमना नहीं है उस तरह धूप में, मतलब जो करना है अपने रूम में बैठ के, वट एवर इज देयर, लाइक एसी चला के जो भी पढ़ना है अपना कंफर्टेबली पढ़ना है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ठीक है कि कैसे क्या करना है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ से खिलवाड़ नहीं तो आप 4 दिन बीमार हो जाएंगे, तो आपका मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट ही पूरा चला गया उसका रिवीजन करने का। जैसे अब 4 दिन बीमार हो गए तो जीएस टू का रिवीजन चला गया पूरा, मान के चलिए, राइट? तो इसलिए एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट के डेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टार्टिंग के डेज। मतलब जब पीटी हुआ था, पीटी क्लियर हुआ, तब के डेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट का है। और एज अ टाइम विल गो क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, तो जैसे लेटर लेटर दिन का जो टाइम का जो वैल्यू है बहुत इंक्रीज होता जाएगा। वाई? बिकॉज वॉट एवर यू आर लर्निंग देयर ड्यूरिंग लास्ट वीक, लास्ट 2 वीक्स, यू विल बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, वो एक बात है। सेकेंडली, वॉट एवर यू आर अभी जो उठा रहे हैं आप, उसको मेक श्योर डैट कि लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 वीक्स में रिवीजन कर लेना है, नहीं तो रिकॉल नहीं आएगा। रिवीजन यू हैव टू डू इट, लास्ट 2 वीक्स में उसको रिवीजन कर लेना, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट टू रिकॉल। ठीक है, जो भी अभी पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ रहे हैं, रिवीजन करके रखना है। ठीक है, और इसमें मैंने एक चीज़ और बताया था कि इसको रिवीजन तो करना ही है, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि इफ़ यू आर रीडिंग सम टॉपिक, सो इफ दैट क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशंस, सम केस स्टडी मे बी देयर इन दैट टॉपिक, सम एग्जांपल्स विल बी देयर इन दैट टॉपिक, है ना? और भी कुछ उसमें हो सकता है, कुछ खास उसमें, कुछ में टर्म्स होंगे, कुछ उसमें टर्मोलॉजी होंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज दीज थिंग्स इन द, कोई क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से, यू हैव टू यूज दोज थिंग्स इन दैट क्वेश्चन, सो इन दैट आंसर, राइट? मतलब मतलब व्हाट, सम टॉपिक इज देयर, फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज अबाउट फूड प्रोसेसिंग ले लो, या चाइल्ड मैरिज ले लो, कुछ भी ले लो, एंड व्हाट, सॉरी ये चाइल्ड लेबर ले लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट ले लीजिए, लॉट्स ऑफ केस स्टडी, है ना, एग्जांपल्स, टर्मिनोलॉजीज में भी देयर। सो पहले से माइंड मेकअप कर लेना है कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें 4 पॉइंट ये लिख दूंगा, ये केस स्टडी में डाल दूंगा, जहाँ जब वुमेन का क्वेश्चन आएगा ये 2 केस स्टडी चली जाएगी। फिर जहाँ जहाँ चाइल्ड लेबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये एक्ट डाल देंगे, एंड दिस एग्जाम्पल, और ये केस स्टडी यहाँ पे कुछ बच्चों को छुड़ाया गया, ये ऐसे यू टू थिंक इन योर माइंड, एंड यू टू मेक श्योर डैट कि वो जैसे क्लिक करेगा वहाँ पे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट, योर माइंड विल एक्टिवेट ऑल दीज क्या सिग्नल्स, दो एग्जाम्पल्स, केस स्टडी अपने आप रिकॉल हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। सो दैट इज बेसिकली दैट, उस समय याद नहीं आएगा, यू हैव टू मेक योर माइंड सेट ऐसा करना कि अभी से ही वो चीज़ होना है, अभी से, मतलब अभी ही आपको लिंक करके रखना है कि ये आएगा तो मैं क्या लिखना है, राइट? लिंकिंग शुड बी डन नॉट सेल्फ। ओके, और जो कीवर्ड्स होंगे क्वेश्चंस में उसको आपको एड्रेस करना है, राइट? जैसे जो भी कीवर्ड्स पूछा जाता है, यू नो दैट, ये तो हम ऑलरेडी शायद डिस्कस किए हैं, आई डोंट रिमेंबर कि किए नहीं किए। सो यू हैव टू यूज दोज कीवर्ड्स इन द आंसर ऑल्सो, और क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना है। तो ये अब उसको ऑलरेडी शायद डिटेल में कर चुका है डिस्कस। ठीक है, तो इसको भी आपको करना है। क्वेश्चंस जो हैं
जो भी होंगे उसमें, यूपीएससी में जो भी आप पढ़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेने हैं एंड यूज दोज कीवर्ड्स इन द आंसर आल्सो एज पर द क्वेश्चंस। आज जो पूछा है उसको भी, उसको इलाबोरेशन भी करना है, ठीक है। और आई थिंक आई डिस्कस अबाउट द डायग्राम्स की सिंप्लिसिटी में क्या करना है, किया है कि नहीं किया है कि डायग्राम, कुछ लोग क्वेश्चन लिखते हैं, दे आर मेकिंग द क्वेश्चन एज ए डायग्राम, डायग्राम फॉर्मेट में करते हैं, ये सब किया डिस्कस में नहीं किया? एनीवेज, सी देर आर मैनी कैंडिडेट्स, और अभी बहुत ट्रेंड भी है कि दे आर राइटिंग द आंसर इन द डायग्राम फॉर्मेट, दैट इज फ्लो चार्ट्स आर देयर, है ना, फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स हैं, एंड वट एवर जो भी उसमें चीज़ है, दे आर राइटिंग द होल थिंग इन दैट होल कॉपी में। इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखते, या लिखते हैं वन लाइन, एंड एवरी एंड द बॉडी ऑफ द आंसर इज इन द डायग्राम फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे करते हैं मैक्सिमम लोग, पर ये दिस इज नॉट राइट, बिकॉज जो द एग्जामिनर इज देयर टू चेक योर आंसर, ही वॉन्ट्स नॉट द डायग्राम, मतलब ही वॉन्ट्स द राइट अप, राइट अप चाहिए। डायग्राम कैन बी द पार्ट ऑफ दैट राइट अप, है ना। ट्राई टू यूज द डायग्राम आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड बिफोर कंक्लूजन। ऐसा नहीं करना है इंट्रोडक्शन के पहले डायग्राम बना दिए, फिर इंट्रोडक्शन हुआ और कंक्लूजन हो गया उसके बाद डायग्राम बना रहे हैं, ये नहीं। मेक इट इन द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का पार्ट हो, क्वेश्चन के बाहर ना हो, ठीक है। सो डायग्राम, डोंट राइट द आंसर कंप्लीटली इन द फ्लो चार्ट मैनर, ठीक है, ये पूरा ऐसे फ्लो चार्ट मैनर में ये पूरा आंसर हो गया ये। दिस यू कैन डू इन सम क्वेश्चंस वेयर द टाइम इज लेस, आपका छूटने वाला है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जो लोग करेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बिकॉज ऑफ कि एक दो लोग यूज कर लिए तो लोग नंबर आ गए तो सब करने लगे, तो दिस इज बेसिकली नॉट द स्टाइल। स्टाइल क्या है कि आपको, यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन, देन आप लिखिए जो भी पॉइंट्स है 1 2 3 4, एंड पॉइंट शुड बी इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड कम इन द बिगिनिंग फॉलोड बाय द लेसर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं वीक पॉइंट स्टार्टिंग में आ गया और स्ट्रॉन्ग पॉइंट नीचे चला गया, प्रायोरिटी ऑर्डर में होना चाहिए पॉइंट्स। देन देन ऑल्सो वट एवर मे बी कंक्लूजन इज देयर, 2 पेजेस लिख रहे हो, 3 पेज लिख रहे हो, जैसे भी, ठीक है। तो जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ दिस आंसर शुड नॉट बी लाइक कंप्लीटली डायग्राम, ठीक है, कि कोई कुछ लिखा नहीं, पूरा डायग्राम फॉर्मेट में बना कर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा बस, सब में नहीं मिल पाएगा, बिकॉज एग्जामिनर विल नो दैट यू आर डूइंग, फॉलोइंग सम ट्रेंड, दैट मीन्स यू माइट बी कुक्ड बाय सम कोचिंग कि ऐसे करना है, एंड यू आर डूइंग लाइक दैट, है ना। ये तो उसके लिए जब क्वेश्चन छूट रहा हो, टाइम लेस है, जो भी है, जैसे भी है, ऐसे फटाफट करने के लिए, बट नॉट इन इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन और एवरी क्वेश्चन, राइट। तो ये आप बड़े अच्छे फॉलो कर लेना। अंडरलाइन यू हैव टू डू द सेम टाइम, आप सेम टाइम करते रहना, ठीक है। डोंट थिंक दैट यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द मेन आंसर विद द राइट अप ऑफ सम, जो फिगर लाइट डाल दिया, फिगर डाल दिया और उसके बाद में राइट अप बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड उसके अलावा आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस एसेज और सब तो कर ही लिया है ना। GS4 का एक कंपलसरी पेपर का, आई विल टेक वन क्लास कंपलसरी पेपर का, है ना, हिंदी इंग्लिश का, उसी में छोटा सा ले लेंगे, 10 मिनट में बता देंगे आप कि क्या हाउ टू डू, नॉट ए कंप्लीट क्लास, है ना, मे बी 10 15 मिनट्स का बात है, एंड रेस्ट वन क्लास मे बी रिक्वायर्ड फॉर यू 2 weeks बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट। सो डेट आई टेल यू डेट लास्ट 2 weeks में क्या करना है, क्या रिविजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड लास्ट डे स्ट्रेटजी क्या, एग्जामिनेशन डे में क्या स्ट्रेटजी है। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम फेसिंग, जस्ट कॉल मी, फिर तो मुझे लगता है देर इज नो नीड फॉर एनी वेबिनार, बट अगर आप बोलेंगे कोई वेबिनार मोटिवेशनल ये वो, देन ऑल्सो आई विल टेक इट, ठीक है। बट आई एम सेइंग दैट कि ट्राई फॉर, आप ऑलरेडी इतना मेहनत कर चुके हैं, ट्राई फॉर दिस ओनली, ठीक है, बिकॉज देर इज 2 jobs इन इंडिया ओनली, ठीक है। इंडिया में 2 ही जॉब है, IAS एंड नॉन IAS। नॉन IAS में सारे आ जाते हैं, ठीक है, सारे ऑल इंडिया सर्विस के, IPS से लेकर सारे, सारा स्टेट सर्विस सब चीज़ आ जाता है, और एक IAS होता है, बस IAS 2 ही होते हैं इंडिया में, 2 ही सर्विस है, राइट। तो डोंट थिंक कि चलो कुछ मिल जाए, IPS बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, लेकिन मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। ये ऑलरेडी फील कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेते, 10 नंबर और होता तो मुझे IAS मिल जाता, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राई फॉर IAS, अपना थोड़ा भी एफर्ट कम नहीं होने देना, ऑलरेडी यू आर डूइंग सो मच एफर्ट, ये भी आप 1 महीना पढ़ेंगे, तो क्यों क्यों ना करके 10 15 नंबर की कमी क्यों करना है, और ले लेना है 10 15 नंबर और के, 20 नंबर 30 नंबर एक्स्ट्रा ले लेना है, सो डेट यू गेट द डिजायर्ड सर्विस, IAS मिल जाए। फिर कैडर जो मिले नहीं मिले वो तो बात की बात है,
एटलीस्ट यू शुड गेट द मिनिमम आईएएस। आईएएस मिल गया, सब हो गया कंप्लीट। फिर आईएएस नहीं मिलता है तो नॉन आईएएस में तो आईपीएस आईआरएस जो सारे हैं ये सब मोटा मोटी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। इन जो आईएएस है वो एकदम एलीट सर्विस है, एंड आफ्टर दैट सब 50% से बाद से स्टार्ट होती है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट्स कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की मेहनत में कमी नहीं करनी है, ठीक है। एंड 6-7 घंटे सोना है और पूरा पढ़ना है और सब रिवाइज करके यू हैव टू फील, है ना, हैप्पी। और जो आप एक्सरसाइज जिमिंग कर रहे हो वो आप करिए, हाफ एन आवर 1 आवर इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, ताकि कहीं बीमार नहीं पड़ना है। और करोगे तो थोड़ा एनर्जी बनी रहेगी, राइट। तो वो सब कर लेना है, वॉकिंग वॉकिंग ये वो, वॉट एवर इज यू आर डूइंग फॉर योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना है, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव, और कुछ हम मेरा रहेगा डिस्कस करना। हम्म? हमने ये किया था डिस्कस कि स्टेटमेंट एंड देर आर समथिंग इज देयर इन द एग्जामिनेशन। एक स्टेटमेंट आता है एंड देर इज क्वेश्चन आस्क्ड दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, समटाइम्स इट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन और नॉट, ये दोनों होता है। तो भी हमने इसका डिस्कस किया था, नहीं किया था? एनीवन किया था? हाँ, वो स्टेटमेंट विद रिलेटेड क्वेश्चन था ना, और जो अनरिलेटेड थे। तो सबको मालूम है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, कि फिर से कर लें 2-5 मिनट में? नो सर मीन्स यू वांट टू डिस्कस? अच्छा ठीक, ओके। सी, जनरली यूपीएससी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। They are giving you one statement followed by one related question, right? They are giving you a statement, एक statement आता है, then a question related with that statement is there. So how to do that question? See, you there is n number of ways, कुछ भी कर लेना है, but I'm telling you the मतलब right kind of way that you can write the, मतलब इसको follow कर सकते हैं, ठीक है। you'll get मतलब you will be exactly on the point, ठीक है। In that case, when the statement is related with the question asked, ओके, सो डेट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि आ, इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स डेट द स्टेटमेंट को आपको ब्रेक करके उससे क्वेश्चन उसको एड्रेस करना है, उससे आंसर निकालना है। तो क्या करना होगा, यू हैव टू ब्रेक द स्टेटमेंट, ओके, यू हैव टू ब्रेक द स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर, राइट। देन यू हैव टू गिव द आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन है इज देयर, दिस क्वेश्चन यू हैव टू एड्रेस इट प्रॉपरली, है ना, विद रेस्पेक्ट टू स्टेटमेंट। दैट मीन्स बिकॉज स्टेटमेंट इज रिलेटेड ना, सिंस द स्टेटमेंट इज रिलेटेड, so therefore you have to break the statement and address the question, right, address the question with respect to the statement। मतलब जो स्टेटमेंट है, यूज दैट इंफॉर्मेशन और वट एवर इज द स्टेटमेंट, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एज द क्वेश्चन आस्क्ड, एड्रेस द क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट, जैसा पूछा गया है, राइट। तो दिस इज वन वे। अनदर इज स्टेटमेंट इज देयर प्लस द क्वेश्चन इज अनरिलेटेड, राइट। दैट मीन्स some statement is given but the question is asking something else, so तो क्या करना है, when the question is different and not related to the statement at all, okay। So first of all you have to write the introduction. Introduction should contain the keywords of the statement, क्यों? Because it should look like that you are, well, actually elaborating the statement, you know that what the statement is, right? But the body of the answer should basically address the question, मतलब बेसिकली द क्वेश्चन
you have to focus on the question, not the statement. Basically, you have to understand the essence of the question. Even if the statement is not related, need not worry. Just address the question. But in the previous case, you are addressing the question with respect to the statement because both are related. Both are, one and the same thing. But here, when the statement is have no relation with the question, so just try to write the introduction using the keywords of the statement so that examiner know, okay, you understand the statement and you are, addressing it. But in the question's body, focus on the question asked. उसमें स्टेटमेंट से देर इज नो नीड इफ इट इज नॉट लिंकिंग टू द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन द एसेंस जो भी है सब्सटेंस ऑफ द क्वेश्चन इज देयर एड्रेस क्वेश्चन ऑनली ठीक है अनुराग सिंपल आंसर मीन्स व्हाट दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ए लेमैन राइट यही है और क्या है आप टॉपर्स की कॉपी देखिए बहुत सिंपल आंसर होता है इफ यू सी द टॉपर्स कॉपी है ना जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है खास तौर से टॉपर हुए जैसे टीना डाबी है या और भी लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हुए हैं वो सिंपल आंसर होता है वाई बिकॉज बिकॉज डीपर नहीं होता ना वो बेसिक बेसिक होता है और वैसा होता है बट सी यू आर आस्किंग मी गुड क्वेश्चन डेट आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे सिंपल लिखें तो इसके लिए एक बार सिंपल क्वेश्चन देख लो लोगों की कॉपीज देख लो सिंपल आंसर मीन्स वॉट इट इजी टू अंडरस्टैंड बाय एनी पर्सन हु इज नॉट प्रिपेयरिंग यूपीएससी अगर कोई यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको उतना टफ मिल जाएगा उस जार्गन्स मिल जाएंगे उसको नए नए वर्ड्स मिल जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स वो नहीं करना है यू टू राइट द आंसर एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड बट इन ए सिंपलिस्टिक लैंग्वेज ठीक है सिंप्लिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में द मोर टफ आंसर यू आर राइटिंग द लेसर मार्क्स यू आर गेटिंग यूपीएससी एग्जामिनर वॉट एवर दे डोंट हैव एनी माइंड सेट मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि क्या लिखा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड नाउ वॉट यू हैव रिटन इफ दे नॉट अंडरस्टैंडिंग देन वाई दे विल गिव यू मार्क्स so that is why I'm asking that the UPSC the examiner should know or understand as a because your answer should be addressing like a layman. ओके ऐसा करके देखो आ जाता है ठीक है करके देखो सबको आ जाता है ऑल्सो एक और चीज शायद पता नहीं बताया नहीं बताया इफ यू नो द आंसर वेरी वेल इफ यू नो एनी आंसर वेरी वेल यू हैव टू एक्सपोज योर आंसर एक्सपोज का मीन क्या है मीन्स आपको यू टू ड्रॉ डायग्राम्स है ना हाईलाइट हाईलाइट मीन्स व्हाट अंडरलाइन और भी जो भी आपको लगता है कि आप उसको पॉइंट्स में कर सकते हैं पॉइंट फॉर्मेट नहीं फिगर्स वगैरह यूज कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं एक्सपोज आंसर सो दैट एग्जामिनर नो अच्छा आपको आता भी है यू नो इट वेरी वेल यू हैव टू एक्सपोज आंसर सो दैट यू मैक्सिमाइज योर मार्क्स बट इफ यू बट दिस विल बी इन द स्टार्टिंग आंसर स्टार्टिंग वंस फर्स्ट आवर में सेकंड आवर में बट इन द थर्ड आवर इन द लास्ट क्वेश्चन लास्ट 15 मिनट लास्ट 20 मिनट्स क्वेश्चन आर देयर यू माइट नॉट नो बी नोइंग इट वेरी वेल सो देयर यू हैव टू कवर अप योर आंसर कवर अप मीन्स क्या है कि निकल जाना है 2 लाइन 5 लाइन जानकार मतलब जो पूछा गया है एज पर इट्स उसकी नॉलेज बता के उसको आगे निकल जाना है कैसे निकलेंगे आई विल मूव आउट कवर अप करना है कवर मतलब मोस्टली गो इन पैराग्राफ्स बिकॉज एग्जामिनर को ऑलरेडी इंप्रेशन आपने डेवलप किया है क्या वो नॉलेज है ये है जो भी है पर उसको पैराग्राफ में निकाल देना है अंडरलाइन नहीं करना इफ यू नॉट श्योर इफ यू आर नॉट श्योर डू नॉट अंडरलाइन इफ यू आर श्योर देन ऑनली यू डू अंडरलाइनिंग मेनली उसको पैराग्राफ निकाल देना डायग्राम इफ यू नॉट श्योर डोंट ड्रॉ डायग्राम इफ यू आर श्योर देन ओनली यू ड्रॉ डायग्राम और फिगर्स सो दैट द यू कवर अप योर आंसर कवर अप करेंगे तो क्या होगा निकल जाएंगे मतलब मार्क्स उतना कम नहीं होगा राइट so while writing an essay and while writing the answer sometimes you are going to deviate from the topic so तो नहीं करना कैसे उसको आप you will be on the topic you have to keep looking the answers on a short period of time मतलब देखते रहना है कि हम टॉपिक पे हैं क्या लिख रहे हैं उससे यूज द कीवर्ड्स ऑन द क्वेश्चन सो दैट यू आर ऑन द टॉपिक ठीक है और कुछ पूछना है आप लोगों को ये तो ने बताया था कि एक का सेट पैटर्न नहीं फॉलो करना है स्पेशली इन द एथिक्स पेपर केस स्टडी में वो भी बाकी में तो यू हैव द सेम पैटर्न इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बीच में बॉडी रहेगा वट एवर है ना एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और नहीं तो एनी टाइम यू कैन आस्क यू कैन कॉल मी मैसेज मी है ना कॉपी आपकी टाइमली चेक हो रही है ना 1-2 दिन में भी मिल जा रही है कुछ लोगों को घंटे में मिल जा रही है राइट एंड फीडबैक ऑल्सो यू आर गेटिंग फ्रॉम सतीश सर है ना
some copies I've sent to Rahul also to check the copy, but he's not finding time. So I think अगर इसका time नहीं हुआ, then I have to give this copy to somebody else, some other person who selected also. तो देखते हैं उसको आज कल में, I'll do it, finalize it. ठीक है. So this is the thing. Any other query? आपको अपनी कॉपी में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन सेंड मी स्पेसिफिकली, है ना? कोई क्वेश्चन, देन आई विल सी एंड आई विल टेल यू बैक. ठीक है. ऐसा लगता है तो मुझको भी दिखा सकते हैं आप. थोड़ा सा टाइम कम रहता है, बट आई विल सी इट, राइट. एंड यू कैन मैसेज मी, टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, कॉल भी कर सकते हो, कोई डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम को यू कैन जस्ट लेट मी नो, मतलब मुझे मैसेज करके टाइम लेके भी कॉल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, राइट. सो मेक श्योर डेट आप प्रॉब्लम सारी एड्रेस कर लीजिए अपनी, चाहे मेरे से, चाहे सत्यजी सर से, वट एवर, राइट. ठीक है. सो आई थिंक नो क्वेरीज. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, है ना. विल मीट वन मोर टाइम, आई गेस, है ना, आफ्टर ए वीक टाइम, एंड देन आई एम देयर. इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, राइट. ठीक है. ठीक है, देन ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.